Hello everyone. So this video that we are going to talk now is about estrus cycle, and estrus cycle is a cycle where we see some kind of sequential changes. Okay, some sequential changes that occurs in non-primates. Okay, so I hope you are aware about primates and non-primates. Okay, so in mammals, on the basis of some kind of uterus or some kind of reproductive measures, on that measure or on that condition, we classify some mammals as primate and non-primate. Primates are those in whom the sequential changes will be seen, and their sequential changes is called as menstrual cycle, which we have discussed in the last video. Estrus cycle is something where the sequential changes are seen in case of non-primates. Okay, so primates में ape, chimpanzee, human, they come under the primate, and under non-primate the remaining, the lower mammals you can say, the remaining ones, deer, cat, mouse, squirrel, all of them, they come under the non-primate section. So sequential changes that occurs in non-primates, okay, you can say in their uterus. Okay, this is called as estrus cycle. So sequential changes that occurs in the uterus in non-primates, that can be called as estrus cycle. Okay, so in estrus cycle, what are the things that we are going to see? In estrus cycle, we will see that estrus cycle in some animals, it does not occurs like every month. In menstrual cycle, we have seen that menstrual cycle occurs every month, is not it, at an interval of 28 days, how it starts, how corpus luteum gets shed, we have seen all of that. So in case of estrus cycle, the another unique character about it is that it will not occur in a 28 days of cycle. It occurs once in every year. It's just like a flowering season of some flowers. It's like that in an entire year there is one season when they gain their reproductive ability and they bring out fruits, they bring out flowers. It's just like that. So there are those mammals present, non-primates, there are those mammals present who does this cycle seasonal basis, like at a particular time of a particular year. That is what estrus cycle is all about. So estrus cycle is different from menstrual cycle in this point that it occurs once in every year. Okay, I am saying the cycle occurs once in every year. Okay, now iske andar maybe we are going to get some kind of distinguishing characters that we will discuss. The next thing that the estrus cycle says is that in estrus cycle there will be no bleeding. So this is another very important point. These you can consider to be the difference between estrus and menstrual cycle. Sometimes you might get those questions for 2 marks in your boards. Okay, that what is the difference between estrus and menstrual cycle. So one occurs in primate, another in non-primate, one occurs at an interval of every 28 days. Okay, and this occurs like in a one time or in the 1 year. Then there occurs shedding of endometrium, bleeding in case of menstrual cycle. In case of estrus cycle, we will see no bleeding and all. Okay, so in estrus cycle, no bleeding occurs. That is we can say that their endometrium is not shed. That their endometrium is not shed. Okay, because if the endometrium gets shed, then there will be bleeding along with the parts of the endometrium. So their endometrium is not getting shed, and hence there is no bleeding. So endometrium का क्या होगा? That we will discuss. That endometrium का होगा तो क्या होगा? Now, in case of estrus cycle, what you will see is that estrus cycle occurs in or estrus cycle is of 2 types. Now, why I was giving that kind of little bit of like pause while I was saying this point, it occurs once in every year, because I am saying the estrus cycle occurs once in every year. Now, uske beech andar we are going to get 2 types, and in 2 types, the first type that we will get is called as monoestrus animals. Okay, and similarly we will get the another type which is called as polyestrus animals. So these are the 2 typification, or you can say 2 types of the estrus cycle that we are discussing. Okay, and whenever I have said you, whenever we write the types, there are some basis behind writing those types. So here, on the basis of the number of cycles occur
per season. Okay, whenever that season will come, when this estrus cycle has to happen, at that time how many times this cycle is going on in a particular animal, depending on that these names are given. Now monoestrus animal are those who will have only one cycle per season. That means suppose in 1 year, July, August and September, these are the 3 months when an animal experiences the estrus cycle, is not it? So in these 3 months they will experience that particular estrus cycle. So in this 3 months the estrus cycle will be one time only. That means their each phases will take more time. You are getting my point? Like there will be 4 phases, similarly like the way we have in menstrual cycle. So there will be 4 phases in estrus cycle, and all of those phases, you are getting my point now, all of those phases will be of little bit more time. Hence in 3 months एक ही estrus cycle होता है. And in case of polyestrus animal, in one season they will have many estrus cycle. That means their estrus cycle will be of a shorter span. Like one cycle will get over within 25 days. So in 3 months you have or 90 days, or you can say 100 days of a season. Fertile season they will have 100 days of a fertile season. इसका एक फेज 25 दिन का है. समझ में आ रहा है ना? चार फेज है, एक फेज अगर 25 दिन का होगा तो 4 फेज कितना दिन का होगा? 100 डेज का. तो ये एक सीजन में एक ही बार ये साइकिल करेगा. लेकिन ये जो एनिमल है, इस एनिमल का एक साइकिल, मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका एक फेज 25 दिन का था, इसका एक साइकिल 25 दिन का है. मतलब इसका 4 जो फेज है वो 4 फेज 6 दिन का होगा, और लाइक दैट 6.25 डेज का होगा. तो इसका एक साइकिल जो है वो है 25 दिन का. तो 100 डेज जब उसका सीजन आएगा 100 डेज का, तो ये कितना बार करेगा एस्ट्रस साइकिल? 4 बार कर लेगा. सो ऑन दैट बेसिस इसको हम लोगों ने पॉलीएस्ट्रस बोला है, ऑन दिस बेसिस इसको हम लोग मोनोएस्ट्रस बोला है. ठीक है. सो ये ओनली वन, हम लोग लिखेंगे ओनली वन एस्ट्रस साइकिल पर सीजन. ठीक है. और इसमें हम लोग लिखेंगे ये करेगा मोर देन वन एस्ट्रस साइकिल पर सीजन. ठीक है. तो ये तो बेसिक है कि मोनोएस्ट्रस क्या है, पॉलीएस्ट्रस क्या है, वो समझाने के लिए. लेकिन मोनोएस्ट्रस एंड पॉलीएस्ट्रस से जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिगार्डिंग देयर एग्जांपल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये सब बोर्ड में भी आने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इन पे फोकस रखना जरूरी है. सो मोनोएस्ट्रस जो एनिमल है, मोनोएस्ट्रस एनिमल में हम लोग को जो एग्जाम्पल मिलेगा वो एग्जाम्पल हम लोग को मिलेगा डॉग का, फॉक्स का. सो दीज आर द एग्जांपल जो मोनोएस्ट्रस है. समझ में आ रहा है ना कि एक सीजन जब आएगा, एक साल का वो 3 महीना, उसमें एक एस्ट्रस साइकिल करने में वो पूरा सीजन लग जाएगा. समझ में आया ना. और यहाँ पे एक सीजन में दे विल डू दैट एस्ट्रस साइकिल फॉर 4 टाइम्स, बिकॉज इनका एस्ट्रस साइकिल का टाइम छोटा है, इनका बड़ा है. ठीक है. तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कैट, इसमें मैं लिख सकता हूँ पिग. ठीक है ना. तो कैट, पिग, ये सब जो एनिमल है दे हैव अ पॉलीएस्ट्रस, दे आर पॉलीएस्ट्रस एनिमल. और इन लोगों में जो भी एस्ट्रस साइकिल छोटा होता है तो एक सीजन में काफी बार कर लेते हैं, जबकि इनका एक सीजन में एक ही बार होता है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टाइपिफिकेशन इज डन. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस एस्ट्रस साइकिल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द फेजेस, द 4 फेजेस दैट आई हैव सेड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 फेजेस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेशन में थोड़ा सा उसको समझेंगे. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम लोगों ने पढ़ लिया है, जो मैंने पढ़ाया था, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस से रिलेट करेंगे इसको. और इसमें वो जो 4 फेजेस है, वो 4 फेजेस में कौन से फेज में क्या होता है, दैट वी विल सी नाउ. ओके. सो आई होप ये क्लियर है. तो आज मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूँ, इतना दिन से मैं पेन एंड पेपर में कर रहा था. सो टुडे आई हैव बॉट दिस बोर्ड पहले से था, स्टैंड वगैरह सब मैनेज किया है, तो आज इससे कर रहा हूँ. क्योंकि अभी आगे जाके मैकेनिज्म्स वगैरह है, जहाँ पे मैकेनिज्म्स नहीं है उसमें हम लोग वापस पेन पेपर चालू रखेंगे. जहाँ पे थोड़ा मैकेनिज्म समझाना होगा वहाँ पे वी विल डू इट इन बोर्ड. ठीक है. सो ये पोर्शन तुम लोग पॉज करके, जब थोड़ा सा मैं बोलूंगा पॉज करके लिख लो. तो ऐसे करके स्क्रीन में पॉज करके ये वाला पोर्शन अभी लिख लेना. ठीक है. क्योंकि एक्स्ट्रा से नोट इसका मैं नहीं देने वाला हूँ. आई विल टॉक विथ यू ऑल एंड देन आगे का कैसे करना है, क्या करना है, वी विल डिस्कस. ओके. आई होप ये तुम लोग स्क्रीन पॉज करके इसका तुम लोग नोट बना लेना. ठीक है. Okay, so the next thing that we are going to talk is that ये जो एस्ट्रस साइकिल है
इस estrous cycle में there are 4 phases present and these 4 phases are just complementary like the phases that we see in case of menstrual cycle. Okay, so what are the phases which are present in estrous cycle? The first phase is called as pre-estrous phase. Okay, the second phase that is called as estrous phase. Okay, the third one is called as meta-estrous phase and the last one is called as di-estrous, or you can also call it as n-estrous phase. So these are the 4 phases of estrous cycle that we are talking. Okay, these are the names. Okay, now देखना अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक फेज को डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे और जब डिटेलिंग में डिस्कशन होगा व्हाट यू विल सी इज दैट कि ये जो फेज है इस फेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम लोग कंपेयर करें तो जो कंप्लीमेंटिंग या कंप्लीमेंटरी जो फेज होगा वो होगा नन अदर देन द फॉलिकुलर फेज. ठीक है, फॉलिकुलर फेज को हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लोग फॉलिकल्स का ग्रोथ, oocyte का ग्रोथ, ये सब हम लोग देखते हैं. ठीक है, एस्ट्रस फेज वो फेज है जिसको अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपेयर करें, ठीक है, ये हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, छोटा सा एम साइकिल लिख दिया है. तो एस्ट्रस फेज का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एस्ट्रस फेज का कंपैरिजन में हम लोग को यहाँ पे मिलेगा द नेक्स्ट वन जिसको हम लोग बुला रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज. इसका हो जाएगा विथ ल्यूटियल फेज एंड ये वो फेज है जिसका इवेंट्स हम लोग को थोड़ा सा सिमिलर लगेगा with the bleeding phase, थोड़ा सा सिमिलर लगेगा. ठीक है, ये these are I'm just saying कि because when I will read out the characteristics of each of these phases you will relate with the explanation that I have given in case of menstrual cycle. You will relate with that what has happened in the follicular phase of the menstrual cycle, the similar thing is occurring over here. So in order to just to give you that comparison I have written this one. Okay, now we will read the characters of each of these phases and we will see what occurs in each of these phases and how come these phases are similar to these phases of the menstrual cycle. Okay, मैं फिर से ये मिटा दूंगा और अभी I am going to write the characteristics. बोर्ड थोड़ा प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा हिल रहा है, कोई नहीं. ठीक है, तो पहला जो ये फेज है प्री एस्ट्रस फेज. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्री एस्ट्रस फेज. ये क्या होगा, सपोज कोई एक डॉग है, एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, अच्छा कोई भी डॉग हम लोग ले लेते हैं. तो इस डॉग का सपोज एस्ट्रस साइकिल होने का जो सीजन है, एस्ट्रस साइकिल्स सीजन जो है वो सीजन आ गया है. तो जैसे वो सीजन आएगा एक फेज के बाद दूसरा फेज होगा. ठीक है, मोनोएस्ट्रस एनिमल ही लिया है सो देयर हम लोग सिंपली इसको समझ जाए कर जाए. तो डॉग एस्ट्रस साइकिल सीजन हैज अराइव्ड. ठीक है, डॉग एस्ट्रस साइकिल सीजन हैज अराइव्ड और अगर इस डॉग का एस्ट्रस साइकिल का सीजन अगर अराइव हो जाए तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि वो है जून 1 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल. तो जून 1 को इस डॉग का एस्ट्रस साइकिल का टाइम आ गया है. ठीक है, तो जैसे जून 1 आएगा इसमें क्या क्या चीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दीज इवेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस प्री एस्ट्रस फेज. क्या क्या होगा देखो, जैसे ये जून 1 आएगा द फर्स्ट फेज ऑफ द एस्ट्रस साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल जो शुरू होगा वो है ये. तो इसमें क्या होने लगेगा, इसमें ये होने लगेगा कि जैसे ये सीजन आता है सबसे पहले पता चलता है किसको, हाइपोथैलेमस को. ओके, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स secreting some hormones and what are those hormones called? That hormone is called as GnRH. ठीक है, GnRH जाएगा जाके एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा FSH एंड LH. ओके, सो ये जो इवेंट एक हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बेसिस पे जो पहला चीज मैं बोल सकता हूं इस प्री एस्ट्रस फेज के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ FSH एंड LH इंक्रीजेस. देखो सेम चीज क्या कहां हो रहा था, फॉलिकुलर फेज में हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल का. सो कंसंट्रेशन ऑफ FSH एंड LH इंक्रीजेस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया. नाउ FSH LH क्या करता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. प्रीमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर जाके एक्ट करेगा इनसाइड द ओवेरियन
कॉर्टेक्स एंड वहां से उसको कन्वर्ट करेगा इनटू प्राइमरी फॉलिकल। तो ये सेम काम ये भी करना शुरू कर देगा। FSH-LH विल रीच द ओवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर फीमेल डॉग एंड वहां जाके FSH-LH का रिलीज करना मतलब काम करवाना चाहता। नाउ FSH-LH क्या करेगा, FSH-LH विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ग्रेजुअली। ऑब्वियसली LH थेका पे काम करेगा, थेका से एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा, तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो चालू हुआ है बढ़ना, अब बॉडी में एस्ट्रोजन पीक लेवल पे बाद में जाएगा, अभी बस रिलीज होना चालू हुआ है। नाउ व्हाट दिस एस्ट्रोजन विल डू, दिस एस्ट्रोजन डज मेनी थिंग्स। ओके, नाउ यू विल हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स वेरी सिंसियरली। ये जो एस्ट्रोजन है, दिस एस्ट्रोजन स्टार्ट्स द development of mammary glands। ओके, फीमेल का मेमोरी ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा होना चालू होगा। नेक्स्ट पेरिनियल ग्लैंड। ये पेरिनियल ग्लैंड मैंने कहाँ डिस्कस किया था, मेल एक्सेसरी ग्लैंड जब पढ़ाया था वहां पे बोला था कि whenever this is absent in case of humans but it is present in case of some lower mammals, and in case of lower mammals we see they develop some kind of gland nearby their anus or nearby their genitals from where they start secreting some odorous chemicals जिसके वजह से एक sexual attraction gets developed between the male and female. The male generally gets attracted towards the female. You might have seen I guess the male dogs, they keep on sniffing around the anus part of the female dog during the breeding season. This is due to this, because of the perineal gland which secretes some kind of odorous chemicals. Okay, so it starts the development of mammary gland, perineal gland, and what? And uterus. Now uterus is very important. Okay, now this will secrete some kind of chemicals, smell producing chemicals which will attract male. समझ में आता है इसका काम। मेमोरी ग्लैंड आगे थोड़ा डेवलप होना चालू हुआ है, आगे जाके मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल बन भी सकता है अगर प्रेगनेंसी हो गया तो। ठीक है, यूटेरस में क्या चेंजेस आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनका जो यूटेरस होता है, इनका यूटेरस होता है कुछ ऐसा। देखो कुछ लेयर से तुम लोग रिलेट करोगे बिकॉज वो लेयर सेम होता है। ठीक है, एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, एक होता है मिडिल मस्कुलर लेयर। ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर लेयर इनसाइड, जिसको समझना है। अब ये जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। ठीक है, दिस इज बेसिकली ए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो यूटेरस को इनर एब्डोमिनल वॉल में मेसेंट्री बना के फ्यूज करने में काम में आएगा। मेसेंट्री वी हैव टॉक अ लॉट। सेकंड जो है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मायोमेट्रियम। तो यहाँ पे भी मायोमेट्रियम है। ठीक है, ये जो अंदर का मैंने लेयर दिया है, इस अंदर के लेयर को इन केस ऑफ मैमल्स, बोल रहा हूँ, सॉरी, इन केस ऑफ ह्यूमन, व्हाट डिड वी से, दैट दिस इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। यहाँ पे इसको एंडोमेट्रियम नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे इसका नाम अलग है। यहाँ पे हम लोग इसको बुलाते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। ओके, सो the concentration of estrogen gradually increases। ठीक है, concentration of estrogen increases gradually। ठीक है, ओके, एस्ट्रोजन का इंक्रीज होने की वजह से the estrogen is doing this point, माने 2 3 is dependent on 2 because of the concentration of estrogen increases, because of concentration of FSH and LH increases, it is increasing the concentration of estrogen, because of the increase in the concentration of estrogen, this is increasing these things। okay, it is making the mammary gland to develop, it is making the perineal gland to develop and do its work, it is also making the uterus ready or you can say prepared for the next step। so what it has started, uterus में क्या क्या चालू हो गया है, देखो uterus में हम लोग क्या देखेंगे, more vascularity। ठीक है, यू कैन से ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हैव स्टार्टेड बिकॉज यूटेरस अभी डेवलप होगा, बड़ा होगा, तो जब कोई ऑर्गन डेवलप होता है, बड़ा होता है, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, सो मोर वास्कुलरिटी इज व्हाट वी कैन सी दैट यूटेरस में क्या हो रहा है, यूटेरस में मोर वास्कुलरिटी हो रहा है, माने ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन इज इंक्रीज। सेकंड, इसका ये जो मायोमेट्रियम जो लेयर हम लोगों ने बोला है, द मिडिल लेयर, द मायोमेट्रियम लेयर, ठीक है, द मायोमेट्रियम लेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग। okay, the myometrium layer starts developing, that means this layer starts getting thick enough, मोटा होना चालू होता है, thick enough, you understand I think, thick enough होना चालू हो जाएगा, तो मसल डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस मैंने अंदर लिखा है, ये स्ट्रेटम बेसिलिस इज इन अ non-functional state, okay, at this point of time. Now when this estrogen is going to act on this uterus, when this particular phase arrives, at that time in this uterus, ये जो stratum basilis है, it is in non-functional state, but estrogen इसको क्या करेगा, non-functional से functional में लेके आएगा, and इसके वजह से हम लोग देखेंगे ये जो stratum basilis है, ये stratum basilis starts developing too. ठीक है, तो we can see three changes which is occurring in the uterus. The first changes is that amongst the layers of the uterus, because these layers are growing, because the uterus is growing, so there is more vascularity present. That means blood vessels are trying to proliferate more, so that जो भी चीज बढ़ रहा है, जो भी चीज बड़ा हो रहा है, वहां कोना कोना तक nutrition should be delivered. Second, myometrium is also getting developed. It is making the uterus bigger. ठीक है, okay. Third thing is that in the uterus, the innermost layer is not called endometrium. The innermost layer is called as stratum basilis. And in this stratum basilis, it stays in a non-functional way till this phase arrives, till this date arrives. When this date arrives, this phase arrives, and when this phase arrives, at that time, due to the influence of estrogen, the stratum basilis of the uterus, it takes birth. It becomes functional suddenly. It starts developing. Now, what development does it do? सी फर्स्ट, ये लेयर खुद अपने आप को बड़ा करेगा. दूसरा चीज, ये लेयर अपने आप को बड़ा करने के बाद दिस लेयर डज सेलुलर प्रोलिफरेशन, मींस इट विल डू सेल डिवीजन, एंड ये अपने ऊपर एक और लेयर बनाना चालू करेगा. ठीक है, अभी तक ये लेयर नहीं था, जो अंदर का लेयर था वो अभी तक नहीं था. When this estrogen acted on this particular uterus and especially on the stratum basilis of this uterus, at that time the basilis it developed itself, ये खुद पहले डेवलप हुआ, and then it did cell proliferation, cell division, and it made another layer over it, and this layer is called as stratum functional. Okay, stratum spelling यहाँ पे भी लिखा हुआ है, and functional functionale. So this layer का बनना चालू हो गया from this pre-estrus phase. So these are what is happening when the pre-estrus phase arrives. Okay, I hope यहाँ तक तुम लोग का क्लियर हुआ होगा. अब यहाँ पे जो भी डिस्कस किया आगे के फेजेस में, इसी का हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे. यहाँ पे जो शुरू हुआ वो और आगे बढ़ेगा, यही हम लोग देखने वाले हैं. आई होप ये क्लियर है. यहाँ पे तुम लोग वीडियो पॉज करके यहाँ तक का अच्छे से नोट तुम लोग बना लेना. ठीक है, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज द एस्ट्रस फेज. ठीक है, एस्ट्रस फेज में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो भी अभी पढ़ा उसका मैंने बोला क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, है ना. उसका आगे का पोर्शंस होगा कि आगे अब क्या होने वाला है. ठीक है, अभी आगे हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट. ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा कि FSH LH का कंसंट्रेशन वाज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. हियर वी विल सी दैट FSH एंड LH आर एट पीक. ओके, so if your FSH and LH is at peak, LH when जब LH पीक में जाता है, रिलेट करो, हम लोगों ने पढ़ा था ओव्यूलेटरी फेज से तो पहले कि when the LH चार्ज होता है तो LH थेका को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है. तो अभी कुछ ओव्यूलेशन के आसपास हम लोग पहुंच गए. ठीक है ना, तो FSH and LH आर एट पीक. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस मोमेंट पे अगर LH इज एट पीक देन एस्ट्रोजन इज ऑल्सो एट पीक. Okay, so when the estrogen is at peak, estrogen is a female sex hormone, so when the estrogen is at peak, at that is called as heat period, that is called as heat period of this particular animal. Important point याद रखना है. Why heat period? Because उस टाइम पे the female will be sexually very excited, sexually very acceptable, है ना. जो भी male you have seen might have वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा, animal behavior तक मैं नहीं जाने वाला हूँ. Okay, but you have seen like
the dogs they quarrel with one another, the males, in order to be superior over the other. So जो superior है उसको opportunity मिलेगा to come close to the female. So जिसको भी ये सब मेल के बीच में झगड़ा हो गया, जिसको भी opportunity मिलेगा उसको कोइटस करने को अब मिलेगा, because female में एस्ट्रोजन पीक लेवल पे पहुंच गया है, and their coitus is not that very pleasuring. Okay, it's also painful. That is why the female generally is not that acceptable. नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखोगे तो ये सब समझ में आएगा. तो एट दिस पर्टिकुलर फेज फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल पीक पे चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज हीट पीरियड. ओके, नाउ इसके साथ साथ और क्या होगा, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एस्ट्रोजन वहां पे क्या किया था. एस्ट्रोजन स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द पॉइंट्स which occur due to the increasing level of estrogen. Okay, so heat period, female will become very much receptible towards coitus. Second, estrogen influence the development of mammary gland, वो develop हो गया है. ठीक है, we will see that the perineal gland are fully functional, that means it is emitting a very high amount of aroma. Second, we will see stratum functional बनना शुरू हुआ था. इसके पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे stratum functional has been made and is fully functional. Okay, now understand the difference. LE, I'm talking about a layer, here I'm talking about a function. It is fully functional, that means it is ready to receive the embryo, and it is ready to give that nurturing to the embryo, the necessary nutrients, necessary condition for that embryo to develop. ठीक है, तो यूटेरस रेडी हो गया, stratum functional has been made. Okay, then blood proliferation होना शुरू हुआ था. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे blood, यहाँ पे blood vessels लिखना है. blood vessels proliferation is completed. ठीक है, एकदम कोना कोना तक ब्लड वेसल्स यूटेरस का पहुंच चुका है. एंड लास्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो वहां पे मायोमेट्रियम का डेवलपमेंट चालू हुआ था. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द मायोमेट्रियम इज वेल डेवलप्ड. थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग तो सुन ही रहे हो वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ. तो व्हेन यू मेक द नोट्स यू मेक इट इन अ प्रॉपर वे. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर एस्ट्रस फेज. वी विल सी FSH LH are at peak, estrogen is also at peak. तो यहाँ पे हम लोग को हीट पीरियड मिलेगा. द फीमेल विल बी रिसेप्टिव टुवर्ड्स कोइटस, शी विल बी सेक्सुअली एक्साइटेड. रिमेनिंग दीज आर द डेवलपमेंट. जो पिछले स्टेज में हम लोग छोड़ के आए हैं उसका आगे का स्टेज, उसका आगे का क्या हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, एज वेल एज हम लोगों को ये मिलेगा कि एस्ट्रस फेज जो है, एस्ट्रस फेज में हम लोगों को दो चीज देखने को मिलेगा कि एस्ट्रस फेज में LH पीक लेवल पे जाने के वजह से इस फेज में हम लोग को देखने को मिलेगा ओव्यूलेशन. दैट मींस द फीमेल का ओवेरी इज गोइंग टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte. ठीक है, द फीमेल का ओवेरी विल रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस. ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो भी हम लोग को मिलेगा. फिर ल्यूटियल फेज इसका समान है. अब हम लोग देखेंगे इस फेज में क्या होता है जो ल्यूटियल फेज से कनेक्ट होता है. तुम लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करना, पॉज करके ये पोर्शन जो है इस पोर्शन का नोट्स बना लेना. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ये बोर्ड में करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वीडियो थोड़ा लंबा लंबा बनेगा, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स है आगे आगे जाके जिसका डिस्कशन हम लोग को बोर्ड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कॉपी में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहानी जैसा है, मुझे तुम लोग को समझाना पड़ेगा, स्टोरी काइंड ऑफ थिंग. तो आई विल चेक कि जो चीज़ अभी ऐसे नोट पेन पेपर से होता है वो पेन पेपर से जो मैकेनिज्म मुझे यहाँ समझाना होगा यहाँ. आज पहला मैं इसमें कर रहा हूँ, इसलिए आज ये भी मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, नहीं तो इसका भी मैं पेन पेपर नोट तुम लोग को देता. इसलिए अच्छे से वीडियो सुनो और अच्छे से नोट्स बनाने का कोशिश जरूर करना. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, मेटास्ट्रस फेज. तो थर्ड फेज में क्या क्या होगा देखो. इस फेज को ल्यूटियल फेज के साथ कंपेयर किया गया है. क्यों? बिकॉज ल्यूटियल फेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट टेक्स 6 days टू रीच द यूटेरस. तो बाय 20 द जाइगोट रीचेस यूटेरस, बाय 22 इट फॉर्म्स प्लेसेंटा. तो लास्ट क्लास से बहुत रिलेटिंग है, वो समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए. तो आफ्टर इट फॉर्म्स प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिलीजेस HCG, HCG कीप्स कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, दैट कीप्स एंडोमेट्रियम एक्टिव.
सो दिस इज द सेम फेज। अगर ये जो फीमेल है, इस फीमेल का एस्ट्रस फेज में हम लोगों ने देखा ओव्यूलेशन हुआ, एस्ट्रस फेज में हम लोगों ने देखा इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पीरियड ऑफ हीट। सो दिस इज द फेज ना वेयर देयर कैन बी अ चांस ऑफ द स्पर्म ऑफ द मेल टू मीट द ओवम ऑफ द फीमेल। सो चांस है कि इधर जाइगोट बनेगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इट विल स्टे इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सिमिलरली इन केस ऑफ देम आल्सो इन द यूटेरस इधर सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा या फिर पहुंचेगा जाइगोट। अगर जाइगोट पहुंचेगा तो इस फेज में लॉक हो जाएगा ओवेरी टिल द गेस्टेशन पीरियड इज ओवर। और अगर सेकेंडरी oocyte पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte पहुंचता है तो गेस्टेशन पीरियड नहीं आएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तब एंडोमेट्रियम जैसे हमारे फीमेल्स में शेड होके ब्लीडिंग हो जाता है, इनमें भी कुछ होगा। क्या होगा वो अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन में पढ़ेंगे दैट इफ, पहला वो लिख देते हैं दैट इफ zygote reaches the ovary, it is, you can write paused at this cycle till the gestation period is over। ठीक, ये एक कंडीशन हम लोग लिख लिया कि अगर जाइगोट पहुंचा, अगर एस्ट्रस फेज में इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एस्ट्रस फेज एंड इफ द जाइगोट रीचेस the uterus is not it, after that we know that the zygote is going to do implantation and it will carry out the pregnancy. So if the pregnancy is carried out, then in this phase the cycle will stop. If the pregnancy does not occur, if the fertilization does not occur, so what will happen under that circumstances? We know that under that circumstances corpus luteum will be formed, is not it? If the fertilization does not occur, if the secondary oocyte reaches the uterus, not the zygote, then we know that corpus luteum has some natural life of it, so corpus luteum will die very soon. So when corpus luteum मरेगा ऐसा टाइप का कंडीशन हो जाएगा। So if no implantation, okay, if no implantation occurs, ठीक है, तो if no implantation occurs माने if no zygote reaches, if secondary oocyte reaches the यूटेरस, तब क्या होगा। सो इफ नो इम्प्लांटेशन ऑकर्स, हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, जो एस्ट्रोजन ने क्या किया था वो सब रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। जैसे कि मायोमेट्रियम जो था, मायोमेट्रियम स्टार्ट्स टू रिड्यूस, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हुआ और अगर जाइगोट पहुंचा यूटेरस को, सो व्हाटएवर डेवलपमेंट दैट वाज मेड टिल दिस फेज, एस्ट्रस फेज, दैट डेवलपमेंट विल कंटिन्यू टिल पार्टुरेशन, टिल द बेबी कम्स आउट। And if the zygote does not reaches, if fertilization does not occurs, no implantation, no secondary oocyte has reached the here secondary oocyte पहुंचा है तो वो तो implantation नहीं कर सकता है। So under that case estrogen level will fall, progesterone level will fall. So under that case myometrium starts to reduce. Okay, blood vessels reduced, blood vessel छोटा होना start हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मेमरी ग्लैंड इज ऑल्सो रिड्यूस, मेमरी ग्लैंड भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ वी विल सी दिस स्ट्रेटम फंक्शनल, दिस स्ट्रेटम फंक्शनल गेट्स केराटिनाइज्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। केराटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स this layer which was made by stratum basilis, this layer will start to die, it will start to like the cells will start to get keratinized, केराटिन आके डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। सो इसका जो सिक्रेटरी एबिलिटी था, अगर यहाँ पे जाइगोट पहुंचता तो ये स्ट्रेटम फंक्शनल क्या करता, उसको न्यूट्रिशन देता, उसको डेवलपमेंट करने में मदद करता। तो बाय चांस यहाँ पे जाइगोट नहीं पहुंचा है, दैट इज दिस कंडीशन, यहाँ पे पहुंचा है सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte पहुंचने से इसका तो कोई काम नहीं है। इसका काम था कि जाइगोट आएगा तो जाइगोट को खाना देगा, जाइगोट को आगे का डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। जाइगोट यहाँ पे आया नहीं है, कौन आया, सेकेंडरी oocyte। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस दिस स्ट्रेटम फंक्शनल विल have no work to do, so when it has no work to do it will start getting keratinized, उसमें केराटिन डिपॉजिट होना चालू होगा and due to that this particular layer will start becoming non-functional again. Okay, so this is what is going to happen under metastress phase. So these are the things that will occur in the metastress phase. Okay, अब एक पॉइंट ध्यान दो, ये जो metastress phase है, this metastress phase is also called as a phase of
स्यूडो प्रेगनेंसी, इसको फेज ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज फेज ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि ये जो फेज है ये वो फेज है कि नहीं जहां पे टिल सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट डिसाइड कि इस फेज में यू कैन नॉट डिसाइड दैट कि ये जो यूटेरस है, इस यूटेरस का ये सब जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट अगर यहाँ पे जाइगोट आया तो भी ये डेवलपमेंट ऐसा ही रहेगा, अगर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आया तो भी कुछ दिनों तक डेवलपमेंट ऐसा ही रहेगा कि नहीं? पॉइंट को समझो, इट विल हैव टू रिलेट इट विथ होम, यू विल हैव टू रिलेट इट विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पढ़ा है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ 14 डेज का है। अगर जाइगोट पहुंचता है यूटेरस में तो जाइगोट यूटेरस में पहुंच के 22 तक वो क्या बना लेता है, 22 तक, 14 से 28, 14 डेज का लाइफ है कॉर्पस ल्यूटियम का। अगर जाइगोट पहुंचता है इन द यूटेरस तो वो जाइगोट क्या करता है, 22 तक इम्प्लांटेशन कर लेता है, ठीक है कि नहीं? सेकेंडरी oocyte अगर पहुंचता है वो भी 28 डेज तक रहता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि नहीं, यूटेरस इज रेडी कि जाइगोट आओ तो भी मैं रेडी हूँ, सेकेंडरी oocyte आओ तो भी मैं रेडी हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जाइगोट आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये तैयार हुआ हूँ इसको मैं टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, टिल बच्चा बाहर नहीं निकल जाए, मैं वहां तक ऐसा ही रहूंगा सज धज के रेडी पूरा। और अगर जाइगोट नहीं आता है तो भी मैं सज धज के रहूंगा फॉर सम डेज। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन गिर जाएगा, प्रोजेस्टेरोन गिर जाएगा, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा। तब क्या होगा, तब ये होने वाला है। समझ में आया? तो ये जो फेज है, इस फेज में द यूटेरस इज रेडी फॉर सम डेज। अगर जाइगोट पहुंचा तो इट विल स्टे टिल प्रेगनेंसी, और अगर जाइगोट नहीं पहुंचता है तो इट विल स्टे टिल हियर। समझ में आया? मतलब फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर जाइगोट नहीं पहुंचता है, सेकेंडरी oocyte पहुंचता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte पहुंचता है, तो भी ये सजा धजा रहेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे जब कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा तब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल लो प्लस हम लोग लिखेंगे PROGESTERON, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिरना चालू हो गया। तो इन हार्मोन्स का लेवल गिरने के वजह से ये होगा। और अगर प्रेगनेंसी हुआ तो ये दोनों तो गिरेगा नहीं, ये दोनों वैसे ही रहेगा, प्रोजेस्टेरोन स्पेशली रहेगा तो वो इसको मेंटेन रखेगा। समझ में आया ना? तो दिस इज व्हाई इट इज दिस फेज इज कॉल्ड एज स्यूडो प्रेगनेंसी, बिकॉज़ फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट शोज द यूटेरस इज रेडी, जाइगोट आओ फिर भी रेडी, सेकेंडरी oocyte आओ फिर भी रेडी, जाइगोट आओ कंटिन्यू, सेकेंडरी oocyte आओ तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आया है। ये जो फेज है डायएस्ट्रस और एनेस्ट्रस फेज, ये क्या है? दिस इज द फेज where what we will see, ये वो फेज है जो कनेक्टेड है। पहला स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था, एनेस्ट्रस साइकिल ब्लीडिंग डज नॉट टेक प्लेस। व्हाई इट डज नॉट टेक प्लेस? यहाँ पे आंसर है क्यों। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में ये है वो फेज, अगर ये कंडीशन होता है, इफ नो इम्प्लांटेशन ऑकर्स, ठीक है ना, एंड स्ट्रेटम फंक्शनल स्टार्ट्स गेटिंग केराटिनाइज्ड, दिस टू मेन हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रेगनेंसी आर गोइंग डाउन, मेनली दिस, okay, they are going down, so these characters which was developed in this and this, they have started to gradually reduce। यहाँ पे ये लोग, ये जो characters है, ये characters completely reduced हो जाएगा, these characters will get completely reduced and back to normal। back to normal माने प्री एस्ट्रस फेज शुरू होने से पहले जैसा था, मायोमेट्रियम पतला सा, ब्लड वेसल्स इतना ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड नॉर्मल, नॉट बड़ा बड़ा, ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो था ही नहीं प्री एस्ट्रस से पहले, सिर्फ बेसिलिस था, ठीक है ना, वो भी चुपचाप नॉन फंक्शनल वे में पड़ा हुआ था, तो नॉर्मल कैरेक्टर में वापस चला जाएगा। ठीक है, डायएस्ट्रस फेज में। प्लस ये जो स्ट्रेटम फंक्शनल यहाँ पे केराटिनाइज्ड हुआ है, इस फेज में जो ये केराटिनाइज्ड हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेटम बेसिलिस जो है, स्ट्रेटम बेसिलिस नाउ acts as a what? It acts as a phagocytes. See, this is the reason why they don't bleed, because when this particular layer functional जो इसी ने बनाया था एस्ट्रस फेज में, उस लेयर का जब कोई काम नहीं है, काम उस लेयर का है जब प्रेगनेंसी होगा, खाना वाना देना होगा एम्ब्रायो को, ठीक है, जब काम नहीं है, जब एम्ब्रायो बना ही नहीं, काम नहीं है, तो ये केराटिनाइज हो गया, तो इसको, इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको क्या करेगा, इसका जो नीचे का लेयर है जिसने इसको बनाया था, वही लेयर is going to now act as phagocytes and it will absorb the entire stratum functional, hence there will occur no shedding, hence there is no shedding, there is no bleeding. So this is the point that why there occurs no bleeding in the estrus phase, because the stratum basilis, which was the creator of stratum functional, the creator
if the pregnancy does not occur, the creator becomes the destroyer. It will act like a phagocyte and it will absorb the keratinase. I am writing only K, stratum functional. So KSTF, that means keratinase stratum functional को absorb कर लेगा. So absorb कर लेगा तो shed नहीं होगा, shed नहीं होगा तो कोई bleeding नहीं होगा. समझ में आया होगा? Okay. N estrus क्यों? क्योंकि ये वो फेज है जहां पे एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल. That is why it is called as N estrus, because no estrus cycle is going on at this particular time. This is the time when that cycle stops. ठीक है ना? तो जून 1 से ये शुरू हुआ था. मे बी N estrus फेज जब आया, this is you can say June, July, August. This is you can say August 30 with no fertilization. Okay, August 30 with no fertilization. So यहाँ पे ये वाला फेज आएगा और इस फेज में हम लोग रुक जाएंगे till the next year. If this is June 1, 2019, this is August 30, 2019 and till the next June 1 of 2020, इसी फेज में ये जो इसका बॉडी का जो भी पार्ट्स है, चाहे वो यूटेरस हो, मेमरी ग्लैंड हो, एनीथिंग, that will again come back to normal and it will stay as normal. And if it, समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है. और जिन लोगों का पॉलीएस्ट्रस फेज होगा उनका यही टाइम ब्रैकेट है, जून 1 से लेकर अगस्त 30. लेकिन ये जो 4 फेज हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑल दिस 4 phases will be happening from June 1 to June 30. Then again it will be happening from July 1 to July 30. Again it will be happening from August 1 to August 30. That means within 3 months these phases will repeat for 3 times. समझ में आया ना? These phases will repeat for 3 times from in polyestrus. June 1 से June 30 all these 4 phases will occur. Then July 1 to July 30 again this will occur. Okay, 31 maybe. August 1 से August 31 again this will occur. है ना? तो एक एनिमल जब मल्टीपल एस्ट्रस साइकिल करता है या मल्टीपल एस्ट्रस फेज करता है एक ही सीजन में, तो उसका जो 2 एस्ट्रस साइकिल है, 2 एस्ट्रस साइकिल के बीच में भी ये फेज है कि नहीं, जहां पे वो थोड़ा पॉज होगा. पॉइंट को समझो. जून 1 से लेके जून 30 तक ये चारों फेज होगा. जून 30 को यहां पहुंचेंगे तो ये वो फेज है. फिर जब जुलाई 1 से शुरू होगा देन अगेन हियर, तो ये वो फेज है कि नहीं जहां 2 एस्ट्रस साइकिल का बीच का फेज, इसलिए इसको डायएस्ट्रस बोला गया है. ठीक है? मोनोएस्ट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इसी फेज में आके सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एनेस्ट्रस. ठीक है? पॉलीएस्ट्रस के लेवल पे अगर देखें 2 एस्ट्रस साइकिल के बीच में यही वो the benchmark है which ends one estrus cycle and then starts the another estrus cycle, hence this is also called as diestrus because ये 2 estrus cycle के बीच में pause लेने वाला phase. Okay, so this is your estrus cycle that I had to explain you. So I tried to keep it a little bit simple and I did not go in too much into the detailing because I hope you have studied the last class that I did on menstrual cycle and oogenesis. And there is a lot relating with that thing. If you don't study that one, ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा. ठीक है? तो यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल मैंने खत्म किया है. सो जो भी नोट्स है मैंने बोर्ड में लिखा है वो नोट्स तुम लोग कॉपी में लिख लेना. हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. उसमें जो बोर्ड में ड्रॉ करना होगा मैं करूंगा, जो नोट्स देना होगा वो दे दूंगा. ठीक है ना? लेकिन आज यहाँ से तुम लोग को नोट्स लिखना है. ठीक है? तो टुडे आई एम साइनिंग ऑफ हियर. होप यू ऑल आर फाइन, इन गुड हेल्थ, एंड लेट्स जस्ट प्रे दैट वी रिज्यूम द क्लासेस वेरी सून. आई मिस माय क्लासेस, आई मिस दैट एनवायरनमेंट. ओके, सो बी हेल्दी.